So we will start with series and parallel grouping of resistors and heating effect of an electric current. Okay, so derivations हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, so सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक current. So, what is an effect of electric current? Joule was the scientist which identified this effect of current. देखिए, करंट के जो है मेनली तीन इफेक्ट होते हैं: हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, सो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, Faraday laws of electrolysis. ठीक है, सेकेंड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. सो whenever we supply a current in the current carrying conductor, it will produce a heat energy in the conductor wire. So that effect of current is called heating effect of current. मतलब क्या होगा, जैसे आप कंडक्टर वायर में करंट सप्लाई करेंगे तो उस करंट की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो दैट इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इसका बेसिक आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है. ठीक है, कि suppose we are taking a conductor wire or resistor wire of resistance R connected with the battery, and the potential difference across the end of conductor is V. Current flowing through the resistor wire is I. So when we supply the current in this resistor wire, current will produce a heat energy in this wire. Now, what is the main reason behind the production of heat energy in the conductor wire? Because when we apply a potential difference across the end of the resistor, the free electron present in the resistor drifted from one end to another end of conductor, which we discussed in the previous topic, that electric current in the conductor. जैसे इस conductor wire के across क्या करेंगे, हम potential difference develop करेंगे, potential difference apply करेंगे, तो free electrons जो हैं वो randomly move करने की बजाय क्या होंगे, they will be drifted from one end to another end of conductor. Means they move in a one particular direction, they performing the drifting motion. So when they are traveling from one end to another end of conductor, or drifted from one end to another end of conductor, they collide with the other ions of the conductor, which are initially static. So when those drifted electron collide with the ions of the conductor, these ions acquire the velocity, and as they acquire the velocity, they also acquire the kinetic energy. क्योंकि velocity मिलेगा तो kinetic energy मिलेगा. So average kinetic energy of the ions of the conductor increases, and that increment in the kinetic energy of ions appears in the form of heat energy. मतलब जब भी जैसे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड ड्रिफ्ट करेंगे तो वो दूसरे आयंस के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे. उन कोलिजन से उन आयंस की वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा. जो पहले स्टैटिक थे वो आयंस क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, और वही इंक्रीमेंट जो होगा हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा. सो दैट इज अ मेन मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन द कंडक्टर वायर. Now we derive the expression of heat energy produced in a conductor wire. तो heat energy का expression कैसे derive करेंगे कि electrons are drifted from one end to another end of the conductor due to the potential difference. So potential difference across ends of conductor is V, and V is equals to W by Q. वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ऑलरेडी हम पोटेंशियल डिफरेंस के लॉजिक से पहले पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन क्या हो गया, V into Q. नाउ द करंट flowing in conductor, that is I, and I is equals to Q by T. So Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, I into T. That is the equation number second. Now put the value of Q
इन द इक्वेशन 1, तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, W is equals to V into Q, so W is equals to V into I into Q, and that work is appear in the form of heat energy. तो ये आपका क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन. तो H is equals to VIT. अब एनर्जी का और हीट एनर्जी का एक ही यूनिट होता है जूल, तो ये हीट एनर्जी आपकी क्या आ गई, जूल के अंदर. अब यही एनर्जी यदि आपको किस में कैलकुलेट करनी है, कैलोरी में कैलकुलेट करनी है. किसमें कैलकुलेट करनी है, कैलोरी में. हीट का एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया, V इंटू आई इंटू टी. अब यही एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, कैलोरी में कैलकुलेट करना है. तो जूल डिराइव अ रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी एंड वर्क डन. वो क्या था, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. तो ये एनर्जी आपका जूल में आया. तो हीट एनर्जी कैलोरी में कितना हो जाएगा, VIT डिवाइड बाय 4.18. So that is the expression of heat energy in the calorie. ये आपका रिलेशन होता है हीट एनर्जी और वर्क डन के अंदर. That 1 calorie is equals to 4.18 joule. तो उस बेसिस पे हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कैलोरी में, VIT अपॉन 4.18. अदरवाइज हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन यही आप यूज कर सकते हैं, VIT. तो पहला एक्सप्रेशन हीट एनर्जी का क्या हो गया, VIT. अब दूसरा एक्सप्रेशन V की जगह आप क्या रख देंगे, I इंटू आर. तो सेकेंड एक्सप्रेशन हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई इंटू टी. हीट एनर्जी का सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया I स्क्वायर आर. इसी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर V की जगह मैंने आई आर प्लेस कर दिया, I इंटू आर, तो I स्क्वायर आर. ये सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया. अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में मैंने क्या रखा, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी. तो I की जगह मैंने रख दिया V बाय आर. हीट एनर्जी का थर्ड एक्सप्रेशन हो गया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू. सो दीज आर द थ्री एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी, VIT, I स्क्वायर आर टी एंड V स्क्वायर अपॉन आर इंटू. सो दीज आर द थ्री एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी. इज इट क्लियर? Is there any doubt? Confirm? Next, electric power. What is an electric power? Power is a rate of doing work, or rate at which energy is consumed or produced. That is next, electric power. Now what is an electric power? A rate at which energy is consumed or produced, or rate of doing work is called a power. Rate of doing work और रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम और प्रोड्यूस इज कॉल्ड पावर. पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, W बाय T और V बाय जो हो गया पावर. ठीक है. तो अभी हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में वर्क डन के तीन एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए, VIT, I स्क्वायर आर टी एंड V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. ये तीन एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किए. तो इसी के रेस्पेक्ट में पावर के तीन एक्सप्रेशन हो जाएंगे, VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, V इज इक्वल्स टू VI. सेकंड एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T डिवाइड बाय T. तो पावर हो गया I स्क्वायर इंटू R. थर्ड एक्सप्रेशन पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T डिवाइड बाय T. T से T कैंसिल, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. तो these are the three expression of electric power. ठीक है. अब पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या होगा पावर का, देखिए जूल पर सेकेंड, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, वाट. कुछ अदर यूनिट्स भी हमें याद रखनी है, जैसे 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट. क्या होता है, 1000 वाट. क्या होता है, 1000 वाट. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्या है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, देखिए E is equals to P into T and commercial unit of electric energy is 1 kilowatt hour. When 1 kilowatt power appliance consume the electricity for 1 hour or operating for 1 hour, then the amount of electric energy consumed by it is 1 kilowatt hour, and 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule. That is the commercial unit of an electric energy. क्या है? Commercial unit of an electric energy. Now how to calculate the number of units consumed by an appliance? यदि कोई appliance है और यदि आप उस appliance को किसी particular circuit में आप use कर रहे हैं for particular time period, यदि उसकी power आपको पता है, so कैसे calculate करेंगे? Number of units consumed by any electric appliance. That is equals to power of device. Power of device किसमें होनी चाहिए? In watt into operating time. Operating time किसमें होना चाहिए? R के अंदर divide by 100. Sorry, divide by 1000. 100 divide by 1000. जैसे मैंने बोला, an electric bulb has a power of 100 watt and operating for 8 hours. तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कंज्यूम हो जाएगी? 100 into 8 डिवाइड बाय 1000. कितना हो जाएगा? 0.8 वॉट. कितना हो जाएगा? 0.8 वॉट. सॉरी, 0.8 वॉट नहीं, 0.8 किलोवाट आवर. 0.8 किलोवाट आवर. 100 पावर ऑफ डिवाइस इन वॉट इनटू ऑपरेटिंग टाइम आवर्स में कितना? 8 डिवाइड बाय 1000. तो कितने यूनिट्स हो गए? 0.8 यूनिट्स. हाउ मेनी यूनिट्स? 0.8 यूनिट्स कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट अप्लाइज. इज इट क्लियर? Is there any doubt? So हमने क्या डिस्कस किया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. नाउ इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस. कोई भी अप्लायंस आप जब चेक करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर हमेशा दो पैरामीटर हमेशा इंडिकेट रहते हैं. वो दोनों पैरामीटर क्या बोले जाते हैं? रेटिंग ऑफ दैट अप्लायंस. और वो दोनों पैरामीटर क्या होते हैं? पावर और वोल्टेज. रेटिंग पावर और रेटेड वोल्टेज. ठीक है. रेटिंग पावर मतलब उसका डिजाइन पावर क्या है, कि वो कितना पावर कंज्यूम करेगा. और रेटेड वोल्टेज मतलब मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज. वो क्या बोला जाता है? उसका रेटेड वोल्टेज. जैसे नॉर्मली हम बल्ब परचेज करते हैं तो बल्ब पे लिखा रहता है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग हियर? कि मैक्सिमम you have applied 220 volt across this appliance. यदि आप 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट अप्लाई करेंगे तो अप्लायंस फ्यूज हो जाएगा. and you apply 220 volt across it, and if you operating it for 1 hour, then it will maximally consume 60 watt. या 220 वोल्ट इसके अक्रॉस लगाएंगे और 1 आवर के लिए इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट में, या 1 आवर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, सो इट विल कंज्यूम 60 वॉट पावर थ्रू द सोर्स. अब यदि आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज कम है 220 वोल्ट से, तो ये लेस पावर कंज्यूम करेगा.
जिसको हम क्या बोलते हैं, डिम पावर। डिम पावर का मतलब क्या है, यदि वोल्टेज इसके अक्रॉस 220 वोल्ट से कम होगा अप्लायंस के अक्रॉस, तो इसका पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, इस रेटेड पैरामीटर से आपको क्या मिलता है, किसी अप्लायंस का रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी अप्लायंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो रेजिस्टेंस यहाँ कैसे मिलेगा, V स्क्वायर बाय P, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से आपको क्या मिलेगा, उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस। जैसे इस अप्लायंस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 60, 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 60, ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, उसका रेजिस्टेंस। क्या हो गया, 4840 डिवाइड बाय 6, दैट विल द रेजिस्टेंस ऑफ दैट अप्लायंस। तो रेटेड पैरामीटर से, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से आपको क्या मिलेगा, उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। जैसे आपको बोला एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेटिंग 100 watt and 220 volt operate at voltage 110 volt. Calculate the amount of power consumed. वो अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम करेगी, ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बल्ब को, ये बल्ब है, इस बल्ब को हमने क्या किया है, 110 वोल्टेज के अक्रॉस ऑपरेट किया, लेकिन इस बल्ब का रेटेड पावर है 100 वाट, रेटेड वोल्टेज है 220। यदि ये रेटेड वोल्टेज, यदि ऑपरेटिंग वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के इक्वल होता तो पावर उतना ही होता, कंज्यूम पावर 100 वाट ही होता। ये भी 220 और ये भी 220 होता, तो रेटेड पावर और कंज्यूम पावर सेम होंगे। यदि आपका रेटेड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज और ऑपरेटिंग वोल्टेज डिफर है, मतलब यदि आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज ज्यादा है तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, और यदि आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज कम है तो ये 100 वाट से कम पावर कंज्यूम करेगा। तो अब आपका ये बल्ब जो जिसकी रेटेड पावर है 100 वाट, तो ये कम पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसका रेटेड पैरामीटर से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या हुआ, V स्क्वायर रेटेड डिवाइड बाय रेटेड पावर, तो हो गया 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हो गया 484 ओम। अब पावर, कंज्यूम पावर निकालनी है, तो कंज्यूम पावर कैसे निकालूंगा, V स्क्वायर बाय P, सॉरी V स्क्वायर बाय R, इसे निकालूंगा। सेम फॉर्मूला लगाया, V स्क्वायर बाय R, बट दिस टाइम जो मेरा V है वो क्या है, ऑपरेटिंग है। यहाँ मेरा V जो था वो रेटेड था। कंज्यूम पावर देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, कंज्यूम पावर कैसे आएगी, देखिए कंज्यूम पावर होगी V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर कौन सा, ऑपरेटिंग। तो कंज्यूम पावर कितनी हुई, 110 इंटू 110 डिवाइड बाय 22 इंटू 20, तो ये क्या 1 और 5, ये 1 और ये 5, तो कंज्यूम पावर कितनी हो जाएगी, 25 वोल्ट। तो यदि इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो कंज्यूम पावर कम हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिम पावर। जब आप किसी भी अप्लायंस को उसकी रेटेड पावर से कम रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो क्या होता है, आपका पावर कंजप्शन उस अप्लायंस के थ्रू कम होता है। इज इट क्लियर? Is there any doubt?
वंदन, मान्या, यस, अभी भी कट रही है? अभी कट रही है आवाज? वंदन, मान्या, समझ में आया? ठीक है, सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। तो रेटिंग ऑफ अप्लायंस से आपको क्या मिलता है, उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस मिल जाता है, और जो कि एक कांस्टेंट पैरामीटर है, और आपको मैक्सिमम कंज्यूम पावर और मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज की एक पैरामीटर भी मिल जाएगी कि वो वैल्यू क्या होगी, वो उसका भी एक आइडिया हो जाता है रेटिंग ऑफ अप्लायंस के। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं व्हेन अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज और अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर। यदि अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्ट है या अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट पावर। पावर की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, इक्विवेलेंट पावर when appliances are connected in series. When appliances are connected in a series, तो जब appliances series में connected है तो आपका इक्विवेलेंट पावर कैसे आएगा? देखिए, जैसे दो अप्लायंसेस ली, ये सिंगल अप्लायंस, ये सेकंड अप्लायंस। देखिए, इसका रेटेड पावर है P1, रेटेड वोल्टेज है V1, इसका रेटेड पावर है P2, रेटेड वोल्टेज है V2, और इसको मैंने कनेक्ट किया। सपोज रेटेड वोल्टेज दोनों का सेम ले लेते हैं, पावर है P1, रेटेड वोल्टेज है V, और इसका रेटेड पावर है P2 और रेटेड वोल्टेज है V, और सोर्स जिसके अक्रॉस इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है वो वोल्टेज भी क्या है, V। मतलब आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज सेम है, ऑपरेटिंग वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज क्या है, सेम है। So when the appliances are connected in a series, same amount of current is flowing through them. अब इनके रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे और इनके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, इनके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अप्लायंस 1 का रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस 1 क्या आया, V²/P1, और R2 की वैल्यू क्या आएगी, V²/P2। ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस 2। दोनों अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस आ गया। अब जब अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है R1 + R2। ऑलरेडी हमें ये नोन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2। तो R1 और R2 की वैल्यू हम प्लेस करें इस एक्सप्रेशन में। देखिए, तो देखिए, R इक्विवेलेंट = R1 + R2। तो R1 की वैल्यू है V²/P1, R2 की वैल्यू है V²/P2। अब देखिए, ये जो इक्विवेलेंट पावर आई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, V²/P इक्विवेलेंट, क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो क्या है, रेटेड वोल्टेज के इक्वल ही है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो आपका निकलेगा ऑपरेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट पावर। तो ये V² और V² कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1/P इक्विवेलेंट = 1/P1 + 1/P2।
So that is the equivalent power when the appliances are connected in a series. Is it clear? मैंने लॉजिक क्या लिया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. R1 की जगह रखा V स्क्वायर बाय P1, R2 की जगह रखा V स्क्वायर बाय P2 और R इक्विवेलेंट की जगह रखा V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट. Is it clear? Is there any doubt? Now next is when the appliances are connected in a parallel. तो देखिए एक अप्लायंस और ये दूसरी अप्लायंस, इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट है सोर्स के थ्रू. जब पैरेलली कनेक्ट होती हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, तो P1 और V, और इसका रेटेड वोल्टेज है P2 और रेटेड पावर है P2 और रेटेड वोल्टेज है V और ऑपरेटिंग वोल्टेज है V. अब इन दोनों में करंट अलग अलग रहेगी लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम रहेगा. तो अब पहले हम रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया, R1 की वैल्यू आई V स्क्वायर बाय P1 और R2 की वैल्यू क्या आई V स्क्वायर बाय P2. ये आपका रेजिस्टेंस आया पहली अप्लायंस का, ये रेजिस्टेंस आया दूसरी. R2 है रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड अप्लायंस. अब आपका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ पावर, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट. अब ये तीनों वेरिएबल की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम प्लेस करें तो देखिए 1 बाय R इक्विवेलेंट V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट, 1 बाय V स्क्वायर बाय P1 और P2 बाय V स्क्वायर. V स्क्वायर कैंसिल, तो P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा P1 प्लस P2. तो जब अप्लायंसेस पैरेलली कनेक्ट होंगी तो इफेक्टिव पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी. Is it clear? Is there any doubt? वंदन, मान्या, समझ में आया? कंफर्म? ठीक है. So that is all about the heating effect of current and about an electric power. इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए आपका ये डेटा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, बट वो क्वेश्चंस करने से पहले हम सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स का एक बेसिक डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती है सीरीज पैरेलल में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ताकि हम सीधे उसके क्वेश्चंस कर सकें. ठीक है. सो नाउ विल डिस्कस सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स. आई थिंक कितना टाइम बचा है क्लास में? हेलो, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस कनेक्ट हो जाइए. ठीक है. कुशाग्र, the next topic is series and parallel grouping of resistors. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका,
series and parallel grouping of resistors. So first है series grouping. Two or more resistors are said to be connected in a series if they are connected end to end and same amount of current is flowing through each resistor. दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर सीरीज में कब बोले जाते हैं? जब वो क्या हो, एंड टू एंड कनेक्ट हो और उन सारे रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो करे. करंट जो रहेगी सीरीज ग्रुपिंग के अंदर क्या रहेगी? कांस्टेंट. क्या रहेगी? कांस्टेंट. अब देखिए करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग है, तो इन सारे रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग रहेगा. And that individual voltage, sum of the individual voltage across the resistors is equals to the voltage across the combination. यानी V is equals to V1 plus V2 plus V3. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुई? सारे रेजिस्टर जो सीरीज में कनेक्ट है उनके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग रहेगा, लेकिन उन वोल्टेजेस का जब हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे, तो वो एल्जेब्रिक सम वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन के इक्वल आएगा. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा? आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 plus R2 plus R1. That will be the equivalent resistance in the series combination of resistor. R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3. ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होगा. अब देखिए मेन जो पॉइंट मुझे यहाँ डिस्कस करना है वो क्या है कि whenever the resistors are connected in a series, current will be the same in all the resistor, but voltage is different and the distribution of voltage is directly proportional to the current. Directly proportional to the resistance. V voltage का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या रहेगा? अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट. ओम्स लॉ क्या होता है? V is equals to IR. तो I की वैल्यू कांस्टेंट है, तो V का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस. तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल्स टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग. इज इट क्लियर? सो दैट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस. इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल ग्रुप. So two or more than two resistors are said to be connected in a parallel if one end of all the resistors are joined together and another end of all the resistors are joined together. इन सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा. देखिए इन सब में करंट जो है वो डिफरेंट रहेगा. तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है? वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहता है, करंट डिफरेंट होगी, तो टोटल करंट हो जाएगी I is equals to I1 plus I2 plus I3. ये आपका टोटल करंट होगा. I is equals to I1 plus I2 plus I3. ये हो गया टोटल करंट. ठीक है. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू 1/R.
ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर हो गया। अब जब वोल्टेज जब भी आपके रेजिस्टर्स क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उतनी ही कम होती है। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 प्रोपोर्शनल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R। इज इट क्लियर? तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल ग्रुपिंग में रेजिस्टेंसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, और सीरीज में वोल्टेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। सो दैट इज अ बेसिक नॉलेज अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, अब आपका